Assalamu alaikum, everybody. We are going to start the presentation. आज हमारा जो सेशन है that is with respect to FBI requirement for digital invoicing और इसका जो एजेंडा है let me share my screen and we can start. आज के एजेंडे में I will give a brief introduction about TMR Consulting and TMRAC. Then we'll discuss about the digital invoicing and instead of browsing the slides, I will ask Aftaf Fazal, he's our senior techno-function consultant, to present you the live demo of the FBR digital invoicing integration system. Let me brief you about our organization. We have two organizations. एक जो है वो TMR Consulting. It is a partner organization with Microsoft. We are tier 1 CSP and we implement Microsoft solutions. We implement Microsoft solutions and we have an in-house application development department. So we have in-house application development department and we also implement Microsoft ERP systems. And in addition to that, we give Microsoft licensing, whether that is on cloud and on premise. And we have offices around the globe in Dubai, in USA, in Pakistan. We have offices in multiple cities, Peshawar, Islamabad, Lahore, Karachi, and Multan. Recently, we opened a branch in the Multan. And we have another organization that is TMRAC. This is an accounting firm. This is a management accountants firm and consultants and legal advisors, which give services related to your legal, give services related to your audits, accounts, corporate matters, taxation, and management consultancy. So this organization is specialist with respect to taxes and FBR requirements. We have multiple partners across different cities. Mia Ramzan heads TMRAC. He is fellow member of Institute and of Cost and Management Accountant, and he's also very mature and senior professional along with Muhammad Imran Saab. He's also Arshad Bashir Saab. He's our senior consultant in Lahore. And we have similarly in Multan and Peshawar, our senior consultant with respect to taxes. What about the challenges? With respect to the compliance requirement, and FBR has the requirement to integrate your invoices with the FBR system, and to integrate with that, you need a software so that and software should be like that it integrates your invoice and its details to FBR in accordance to the requirements. And there are risks of non-compliance with FBR regulation if your system is not capable of integrating properly, or if there are some errors in integration, then it can impact your legal compliance. And इसलिए जो आपकी visibility है with respect to invoices and its integration, जो software है, it should be capable enough to meet all the FBR requirements, not only for a certain business. There are multiple type of the business, whether it is there are a lot of scenarios which FBR has given, and Aftab will discuss with respect to that scenarios with you later on. So in order to avoid plenty and other issues with respect to compliance, you need a system. What we did, we have a very comprehensive system that is built on the latest technologies. On the front end, we use RecJS and MySQL in the back end, and we have deployed it on Azure. So Microsoft technology Azure on the cloud, so that there is no interruption in the provision of the services, not on our local servers, not on our in-house, but we have deployed it on cloud.
So it will help you to remain 100% compliant and audit ready. And so why to use this system? Because it is ready to integrate. When you will give us the your requirements that you want to integrate, just we need to take we need to give IP and take access token from the FBR Prol system, and once we get that, the system is ready to start. The system has capability of multiple reports within the system, and you can apply filters, and you can see different reports, and it will save your time and reduce errors and ensures compliance. Okay, क्यों नहीं आ रहा है? अब मैं ना आफ्ताब साहब को कहता हूँ कि वो अपनी स्क्रीन को शेयर करें और आपको ना डिटेल में ना इसके ऊपर डायरेक्टली जो हमने सिस्टम डेवलप किया है उसके फीचर्स के बारे में और उसकी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दें, सो दैट कि आपको पता चले कि सिस्टम की कैपेबिलिटीज क्या है और ये कैसे आपको हेल्प आउट करेगा. तो आफ्ताब, काइंडली शेयर योर स्क्रीन एंड स्टार्ट गिविंग डेमो अबाउट द सॉफ्टवेयर. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड आफ्टरनून. आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है सबको? एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन. दिस इज द लॉगिन पेज फॉर द डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम. जिस तरीके से अभी इंट्रोडक्शन में हमने इसको गो थ्रू किया है कि ये सिस्टम टोटली ऑन वेब बेस्ड होगा, ठीक है. इसके अगेंस्ट आपको यानी कि एक यूजर आईडीज और पासवर्ड आपको मिल जाएंगे जिसके थ्रू आपने सिस्टम के अंदर लॉगिन करना है. अभी मैं एक टेस्ट ईमेल आईडी से लॉगिन करता हूँ सिस्टम के अंदर, एंड देन वी विल गो थ्रू द डिफरेंट पेजेस एंड फंक्शनलिटीज. अच्छा, इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है, यू कैन क्रिएट, हमें रिक्वेस्ट करके वो मल्टीपल कंपनीज इसके अंदर ऐड की जा सकती हैं और मल्टीपल यूजर्स ऐड हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इफ यू आर ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो उसको भी आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हो. वंस वी लॉग्ड इन, ये हमारा डिजिटल इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर का होम पेज है जिसके अंदर आपको सप्लाई चेन से रिलेटेड जो फंक्शनलिटीज हैं, सेल्स, परचेज, आइटम्स, इन्वेंटरी एडजस्टमेंट्स, और इसी तरीके से आपके जो मास्टर रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर जो बनेंगे आपके, जिसको आपने सेल करना है, आइटम्स, वेंडर्स एंड कस्टमर्स. इनकी फंक्शनलिटी में हम बाद में जाते हैं. नो जंप करता हूँ मैं डायरेक्ट सेटअप्स के ऊपर. अच्छा, ये डैशबोर्ड हैं. ट्रांजैक्शंस वी हैव सेल्स, सेल साइड हमने कवर की हुई है इसके अंदर, परचेज साइड कवर की हुई है, और इन्वेंटरी एडजस्टमेंट्स. सेल्स में हमारे पास सेल इनवॉइसेस जो डायरेक्ट आपकी एफबीआर के साथ इंटीग्रेटेड है, वो भी हम इसका डेमो करके देखते हैं. सेल्स रिटर्न है, परचेज इनवॉइसेस, परचेज रिटर्न. और इसी तरीके से इन्वेंटरी एडजस्टमेंट, अगर आपने ऑन हैंड स्टॉक, अगर इन्वेंटरी की स्टॉक कीपिंग करनी है और आप चाहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही मेंटेन करनी है, तो आप इस इन्वेंटरी एडजस्टमेंट की फंक्शनलिटी को भी यूज कर सकते हैं. ऑन द टॉप ऑफ दैट, एवरी ट्रांजेक्शन बिहाइंड वो लेजर्स के अगेंस्ट वो लिंक्ड है, ठीक है. अगर आप सेल इनवॉइसेस क्रिएट करेंगे या सेल रिटर्न क्रिएट करेंगे, उसके अगेंस्ट लेजर एंट्रीज हमारी सिस्टम में बन जाती हैं. कस्टमर लेजर एंट्रीज और आइटम लेजर एंट्री तो आपकी क्रिएट होंगी आइदर यू गो फॉर सेल इनवॉइस और आइदर यू गो फॉर परचेज इनवॉइस. अगर हम परचेज मॉड्यूल को के थ्रू अगर हम परचेज इनवॉइसेस एंटर करेंगे तो वेंडर लेजर्स के अंदर उसका डाटा फॉल कर जाएगा. और इसी तरह पे डिटेल रिपोर्ट्स हैं सेल्स की, परचेज की, इन्वेंट्री की. और इसके अलावा हमने सिस्टम में बल्क में अगर आपने एक्सेल के थ्रू अगर सेल इनवॉइसेस इंपोर्ट करनी है वो भी आप कर सकते हैं. ये फीचर हमने इसलिए यहाँ पर दिया है कि मोस्टली करंटली ये जो डिजिटल इन्वेस्टिंग का सॉफ्टवेयर आप लगा रहे हैं वो ऑन द टॉप ऑफ आप किसी और सिस्टम की बिहाफ पे लगा रहे होते हैं. आपका प्राइमरी सिस्टम चल रहा होता है लेकिन आपने एफबीआर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए डिजिटल इन्वेस्टिंग की ऐप को यूज करते हैं. तो इसलिए वो ईज के लिए हम सेल इन्वेस्टिंग एक्सेल के थ्रू इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. नो लेट्स फर्स्ट जंप हम करते हैं कि किसी भी सिस्टम को रन करने के लिए आपको जो सेटअप रिक्वायर्ड है वो आपने करने हैं. जिससे कि अब हम फर्स्ट जाते हैं कंपनी प्रोफाइल में. अच्छा, ये कंपनी प्रोफाइल हम मैनेज कर रहे होते हैं, कंपनी हम क्रिएट करके दे रहे होते हैं एडमिन पोर्टल के थ्रू, ठीक है. उसकी एक्सेस क्लाइंट्स के पास नहीं होती. वंस हम आपको कंपनी प्रोफाइल दे देंगे तो उसके अंदर फिर आपने अपनी टैक्स डिटेल जो है, जिस तरह आपका एनटीएन नंबर है जो एफबीआर के साथ आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, सेल्स टैक्स नंबर,
हाँ, सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर ये है। अच्छा, अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके ऊपर FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगती है। अगर तो वो आपकी कंपनी उस रीजन में या उस टाइप के ऊपर फॉल कर रही है, तो देन उस बिजनेस के ऊपर देन हम FED का टॉगल ऑन कर देते हैं, तो फिर FED की फंक्शनलिटी इसके अंदर एनेबल हो जाती है, अदरवाइज हम इसको ऑफ रखते हैं। ऑब्वियसली जब भी आपने FBR के साथ इंटीग्रेशन करनी है, उससे पहले आपको सैंड बॉक्स की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने केसेस फुलफिल करने हैं। उसके लिए फिर हम शुरू में सैंड बॉक्स को ऑन कर देते हैं, ताकि आपकी वो टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए और उसके बाद आपको प्रोडक्शन का डेटा आप इसके अंदर एंटर करना शुरू कर दें, तो सैंड बॉक्स आपका ऑन होगा। इसी तरीके से ये कस्टमर ने ये एडिशन इन्फॉर्मेशन आपने एंटर करनी, लोगो आपने अपडेट कर देना है। वंस ये आपका अपडेट हो जाता है, तो आपने आ जाना है यूजर्स में। बाद में टच करता हूँ कस्टमर्स हैं। ऑब्वियसली कस्टमर आपने जिसके अगेंस्ट आपने सेल आउट करना है अपने आइटम्स को, आपने कस्टमर क्रिएट करना है, ठीक है। कस्टमर नेम आ गया, टाइप आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है, जो सी भी टाइप है, इंडिविजुअल है, कंपनी, गवर्नमेंट, अदर, EOP, ठीक है। अच्छा, अब हमने कस्टमर के ऊपर ये एक नोट की फील्ड एडिशनल दी है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी सेल इनवॉइस में प्री डिफाइंड कुछ नोट प्रिंट करवाना चाहते हैं, या पेमेंट टर्म्स हो गई, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आप हर दफा चाहते हैं कि हम सेल इनवॉइस के अंदर वो साथ ही प्रिंट आउट करवा दें। तो उसके लिए वो इंफॉर्मेशन आप कस्टमर के साथ यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, बट लेटर ऑन आप अगर सेल इनवॉइस में अपडेट करना चाहें तो आप सेल इनवॉइस से भी इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग मैंने जस्ट दिखाने के लिए आपको यहाँ पे 2 लाइन लिख दी है, सेल इनवॉइस लाइन 192, एड्रेस आप एंटर करें। अच्छा, अब यहाँ पर जो NTN है, ये आपने वो एंटर करना है जो इस कस्टमर का FBA के पास रजिस्टर्ड है, ठीक है। कंपनी है तो उसका NTN आ जाएगा, अगर इंडिविजुअल है तो उसका CNC आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड स्टेटस सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपने वही प्रोविंस एंटर करना है जिस प्रोविंस के अंदर उसका ये NTN और CNC बिलोंग कर रहा है, ठीक है। आपने वही प्रोविंस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कस्टमर की, आपने लिखना है कॉन्टैक्ट नेम, फोन नंबर, वंस ये आपने अटेंड कर दिया, रिकॉर्ड अपडेट कर ले, रिकॉर्ड अपडेट हो गया। ये इस तरीके से आपका एक कस्टमर क्रिएट हो जाते हैं। वेंडर वेंडर की क्योंकि इंटीग्रेशन FBR के साथ नहीं है, अगर आपने परचेज वाली साइड को भी फंक्शनल करना है तो आपको उस वेंडर भी क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन वेंडर के केस में मैंडेटरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट वही NTN लिखना है जो आपका FBR के अंदर रजिस्टर्ड वेंडर का, ये आपने बस डिटेल एंटर कर ली, एक आपने वेंडर क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसके अंदर वो है आइटम, आइटम की क्रिएशन। अच्छा, अब आइटम की क्रिएशन में बल्कि मैं आपको एक न्यू आइटम क्रिएट करके बताता हूँ। न्यू। अच्छा, अब आइटम की क्रिएशन के अंदर हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी या जो आइटम्स की जो कैटेगरीज है उसमें फॉल करता है, ठीक है। अभी जिससे कि अगर ये दिखाऊं आपको, एक्सेल की एक शीट है मेरे पास, ये कुछ आइटम की टाइप्स हैं जो FBR ने रिकमेंड की हैं 28, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि हमारा जो आइटम जो हम सेल कर रहे हैं वो किस टाइप के ऊपर फॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड फिर हमने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, HS कोड वगैरह है, वो हमने वो सिस्टम को बताने होते हैं, अदरवाइज ये सिस्टम आपको आगे नहीं जाने देगा और FBR भी उस आइटम की सेल को रिजेक्ट कर देता है। तो इसके लिए फिर हम अब जाते हैं दोबारा सिस्टम में, जिस तरीके से यहाँ पर आ रहा है स्टैंडर्ड रेट है, स्टैंडर्ड रेट अनरजिस्टर्ड बाय है, सेल ऑफ स्टील, शिप रिड्यूस रेट, एग्जाम गुड्स है, कुछ जीरो रेटेड है, थर्ड स्केड्यूल के कुछ आइटम्स होते हैं उनकी सेल अगर आप करते हैं, CNG है, इलेक्ट्रिसिटी है। इसी तरीके से FD वाले काम जो है, FD अगर आपको लगता है जिससे मोस्टली ये टोबैको और मैन्युफैक्चरिंग वाली साइड पर FD भी लग रहा होता है, तो वो डिपेंड करता है हमारा केस किस पे फॉल करते हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं एक आइटम, मिसाल के तौर पर मैं अब एक आइटम है वो मैं बनाता हूँ जहाँ पर स्टैंडर्ड रेट का कोई एक आइटम, हाँ स्टैंडर्ड रेट का है, हम मैं एक कोई ना आइटम बना लेता हूँ। ठीक है, अब जिस तरह मैं एक स्टैंडर्ड रेट का बना लेता हूँ, नेम मैंने लिखा स्टैंडर्ड रेट आइटम। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं जो स्टैंडर्ड रेट आइटम बना रहा हूँ उसका HS कोड क्या है, ठीक है।
जब मैं इस लुकअप पे क्लिक करूंगा ये सारे वो एचएस कोड हैं जो एपीआई हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके अंदर से अब हमने सिलेक्ट करना है कि हमारा कौन सा एचएस कोड है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से हम कॉलम वाइज कोड वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन वाइज भी हम इसके अंदर फिल्टरिंग कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से एक सेकंड जो मेरी लिस्ट है मैं पूरा कर, ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ 8478 नेट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक एचएस कोड है जो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इसी एचएस कोड से रिलेटेड वो हमें सजेस्ट कर रहा है सिस्टम कि आप सिर्फ यूनिट में ये जो आप असाइन कर सकते हैं वो केजी, ठीक है, और हम कोई असाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है सेल टाइप। ये जो आइटम है जो भी मैंने पहले जो लिस्ट दिखाई थी आपको एक्सेल की, ये वही लिस्ट है, 28 इसके अंदर आ रहे होते हैं। अब हमने देखना है कि हमारा ये आइटम किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रहा है। ये मेरा कर रहा है गुड एट स्टैंडर्ड रेट पर, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब सिस्टम कह रहा है कि आपका कौन सा टैक्स एप्लीकेबल है, सेल टैक्स, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये जो जितने भी है ना एचएस कोड, एफबीआर यूनिट में, ये सेल टाइप, टैक्स रेट, एसएस स्केड्यूल नंबर, आइटम सीरियल नंबर, ये सारे एफबीआर से ऑटो आ रहे होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एचएस कोड। अच्छा, अब ये मैंने जो एचएस कोड सिलेक्ट किया है इसके अगेंस्ट अभी कोई रिसेंटली कोई एसआरओ स्केड्यूल नंबर रिलीज नहीं है हुआ, तो इसलिए ये आपके पास ये ब्लैंक आ रही है। अगर ब्लैंक आ रही है नो इशू, छोड़ दें इसको। इसी तरीके से आइटम सीरियल नंबर नहीं आ रहा, इसको स्किप कर दें, कोई इशू नहीं। इसके बाद मैं एक और केस आपको बताऊंगा जिसके अंदर आपका एसएस स्केड्यूल नंबर और आइटम सीरियल नंबर भी पॉपुलेट होता है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। वंस ये हो जाता है तो आइटम कैटेगरी, ये आइटम कैटेगरी से हम सिस्टम के अंदर आइटम कैटेगरीज बना सकते हैं मल्टीपल। अभी ये मैंने कुछ ये 2 या 3 बनाई हुई है, तो अभी हम फॉर एग्जांपल मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल है कोई, ठीक है, आइटम टाइप इन्वेंट्री है, कॉस्टिंग मैटर फिलहाल FIFO चल रहा है। ये अवेलेबल क्वांटिटी, ये रीड ओनली फील्ड है, ये रन टाइम पे आपकी ऑन हैंड क्वांटिटी सिस्टम कैलकुलेट करके बता रहा होता है कि इस वक्त आपके पास ऑन हैंड क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है। अच्छा, ये है प्रिंट यूनिट में, ये वो यूनिट में ये है जो आपकी सेल इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी, यहाँ पे आप इनवॉइस डिटेल में इसकी टेंटेटिव जो कॉस्ट प्राइस है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 15,000, क्योंकि ये आइटम जो मैंने अभी क्रिएट किया है और ये जो कंपनी है ये एफडी मोड एनेबल्ड है, इसलिए यहाँ पे आपको एसेस यूनिट की फील्ड आपको एनेबल्ड है। क्योंकि हम ये आइटम स्टैंडर्ड रेट वाला बना रहे हैं, एफडी वाला नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इसकी टेंटेटिव सेल प्राइस फॉर एग्जांपल हम अभी लिख देते हैं 2000। और क्योंकि ये आइटम जो है अभी आपका, क्योंकि थर्ड स्केड्यूल वाला नहीं है, अगर ये आइटम थर्ड स्केड्यूल वाला होता तो हम यहाँ पर रिटेल प्राइस में इसकी टीपीबी टोटल प्राइस या रिटेल प्राइस ये एंटर कर देते हैं। अभी फिलहाल हमने इसको छोड़ दिया। ठीक है, अभी हम सिंपल केस कर रहे हैं। ये मैंने एक आइटम क्रिएट कर लिया, ये आपका आइटम हो गया सेल। ठीक है, ये जो मैंने अभी आइटम क्रिएट किया था स्टैंडर्ड रेट आइटम। ठीक है, नेक्स्ट वंस ये आपके पास आइटम्स कस्टमर्स ये चीजें बन जाती हैं तो अब हम आ जाते हैं ट्रांजेक्शन्स पर, सेल्स, सेल्स इनवॉइस, न्यू। अच्छा, यहाँ पे हम करेंगे इनवॉइस डेट। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 27, और जिस डेट को आप पोस्ट कर रहे हैं पोस्टिंग डेट कर लेते हैं 28। कस्टमर है, स्पेसिफिक कर दे भी टू अदर अपील्स। कस्टमर मैंने हेडर इसका फिल कर लिया कि मैं किस कस्टमर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं अब इसकी लाइन फिल आउट कर रहा हूँ। कर दें मल्टीपल अपील्स ना। अच्छा, वंस मैंने जब ये लाइंस में आइटम एंटर किया तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आइटम को क्रिएट करते हुए इसको दी थी कि इसका यूनिट मेजर कौन सा होना चाहिए, इसका टैक्स कौन सा होना चाहिए, वो सिस्टम ने ऑटो पिक कर ली। ठीक है, यूनिट प्राइस क्या होनी चाहिए और सेल टैक्स क्या होना चाहिए। अच्छा, अब इधर मैं इसकी क्वांटिटी को करता हूँ अपडेट, जितनी भी आपने ये सेल इनवॉइस जनरेट करनी है, जितनी भी क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया 3 क्वांटिटी। अच्छा, अब यहाँ पर क्योंकि ये एफडी केस नहीं है, ये रिटेल प्राइस भी नहीं है, इससे ये रिटेल प्राइस 0 है। अगर मैं यहाँ पे अब इसकी सेल प्राइस चेंज करना चाहूँ मैं ये चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 20,000 तो मैंने उधर दी थी 20, और मैं इसको जो एक्चुअल जो आपकी प्राइस है वो मैंने इसको 18,000 कर दी। ठीक है, सेल टैक्स यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये सेल टैक्स हमारा आइटम के साथ बाइंड है, जो एफबीआई के साथ जो रेट उसने इशू किया होता है उस एचएस कोड के अगेंस्ट, इसलिए इसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर हम चेंज करने हैं तो आपको आइटम कार्ड के ऊपर से वो अपडेट करना पड़ेगा टैक्स रेट। ठीक, वंस ये डन, डिस्काउंट है, डिस्काउंट आप दे सकते हैं। अगर कोई फर्दर टैक्स एप्लीकेबल है फर्दर टैक्स दे सकते हैं। अगर आपका केस किसी ऐसे एडवांस टैक्स अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है इनवॉइस की टोटल अमाउंट के ऊपर, अगर आपका टैक्स लग रहा है एडवांस टैक्स, अगर वो केस है आपका, अब वो दे सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ दें। अजी, यहाँ पर ये देखिए नोट के ऊपर जो मैंने नोट्स
उसके ऊपर कस्टमर के ऊपर मैंने डिफाइन किए थे वो सिस्टम ऑटो ले आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैंने इसको अमेंड फर्दर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा कुछ ऐसे वैल्यूज होती है जो वेरीज करती हैं आपकी सेल इनवॉइस वाइज, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वंस डन, अब इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद, क्योंकि अभी इसका सैंडबॉक्स मोड ऑन है, सैंडबॉक्स मोड ऑन करने के लिए एफबीआर की रिक्वायरमेंट होती है आपने उसको सिनेरियो नंबर भी पास करना है कि आप किस सिनेरियो के लिए ये काम कर रहे हैं। उसकी आपको लिस्ट मिल जाती है, एफबीआर की तरफ से भी मिल जाती है और हम भी आपको प्रोवाइड कर देते हैं। अब जिस तरीके, बल्कि हम भी आपको कर देते हैं। अब जिस तरीके से अब ये मैं कर रहा हूँ गुड एट स्टैंडर्ड रेट, इसका जो सिनेरियो नंबर है वो है SN001। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा SN001। वंस आई डन इट, सेव करने के बाद मैं जब पोस्ट करूंगा तो वो मुझसे कंफर्मेशन ले रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू पोस्ट दिस डॉक्यूमेंट, वंस पोस्ट इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। जब मैं ओके करूंगा तो ये जो सेल है ये मेरी एफबीआर के पोर्टल के ऊपर अपलोड हो जाएगी और उसके अगेंस्ट मुझे एक एफबीआर का इनवॉइस नंबर जनरेट कर देगा। अब मैं ओके करता हूँ। प्रोवाइडेड एंड कस्टमर आ गया। चलिए, अपडेट पोस्ट। ठीक है, वंस वो मैंने SN001, ठीक है, सीरियल नंबर SN001 किया, पोस्ट किया, ये आपका एफबीआर नंबर आपको रिसीव हो गया। ठीक है, एफबीआर इनवॉइस नंबर। अब इसके अगेंस्ट हमारा जो प्रिंट निकलता है, ठीक है, ये है एफबीआर का लोगो आ जाता है जो वो कहता है प्रिंट आपने करना है, और साथ आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाता है और ये क्यूआर कोड आपको रिसीव हो जाता है और ये आपकी सारी डिटेल आ जाती है, कंपनी का लोगो आ जाता है और यहाँ पर कस्टमर का बायोडेटा सारा आ जाता है और यहाँ पे आपका इनवॉइस का सारा हेडर आ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर वो नोट्स हैं जो हमने वहाँ पर लिखे थे कि आपने जो बाय डिफॉल्ट इनवॉइस के साथ जो प्रिंट करवाने, और राइट साइड पे आपके पास इनवॉइस का सारा वो फुटर आ जाता है जिसमें आपका एफडी, अमाउंट इंक्लूडिंग डिस्काउंट, अमाउंट इंक्लूडिंग सेल टैक्स, सेल टैक्स, अमाउंट इंक्लूडिंग सेल टैक्स, फर्दर टैक्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अमाउंट इन वर्ड्स में भी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है और यहाँ पे एक टैग आ जाता है नीचे जिसपे लिखा होता है दिस डॉक्यूमेंट इज सिस्टम जनरेटेड एंड डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर। ये आपके पास एक इनवॉइस का टेम्पलेट जनरेट हो जाता है। इसको आप चाहे प्रिंट कर लें, पीडीएफ में ले जाएं, जिस तरह ले जाएं वो आप ले जा सकते हैं। अब इसको क्लोज करता हूँ, बैक जाता हूँ। इस तरीके से आपकी एक सेल इनवॉइस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अच्छा, अब मैं दूसरे सेक्टर में जाता हूँ आइटम के, जिसमें मैंने आपको कहा था वो ऐसा स्केड्यूल नंबर, और उसके लिए फिर मैं आपको ये वाला जो, अच्छा, ये कुछ जो खास तौर पर ये आपके एग्जेम्प्ट आइटम्स होते हैं, जो आपके जीरो रेटेड आइटम्स होते हैं, इस तरह के आइटम्स होते हैं, उसके साथ मोस्टली ऐसा स्केड्यूल नंबर भी हमें पास ऑन करना पड़ता है एफबीआर को कि किस क्लॉज के अगेंस्ट आपने ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक आइटम है, उसका एचएस कोड है 9018383939, उसका यूनिट में ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इसका स्टेटस हमें पता है, ये आइटम टाइप एग्जाम्प्ट पर फॉल कर रही है तो आपने एग्जाम्प्ट कोड सेलेक्ट कर लिया। इसका रेट जो होता है एफबीआर 0 दे रहा है वो हमने कर लिया, और इसका एसआरओ स्केड्यूल नंबर, ये एक लिस्ट है। ये लिस्ट क्योंकि एचएस कोड हमने ये एग्जाम वाला सेलेक्ट किया था तो इसलिए हमें ये लिस्ट मिल गई है एसआर स्केड्यूल नंबर की। इसमें से हमने ये सिर्फ स्केड्यूल सेलेक्ट कर लिया। अब ऑन द टॉप ऑफ सिर्फ स्केड्यूल वो सिस्टम हमसे ये पूछ रहा है कि अब सिर्फ स्केड्यूल के अंदर आपका ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। फॉर द टाइम बिंग मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये पॉइंट है। बाकी इन्फॉर्मेशन उसी तरह रहेगी, आइटम कैटेगरी, इन्वेंट्री, FIFO, सब कुछ इसी तरीके से। ये यूनिट कॉस्ट लिख दिया, सेल प्राइस लिख दिया, वो मैंने अपडेट कर लिया। ठीक है, ये अपडेट हो जाता है। अगर आपका आइटम है एफडी बेस, जिसके ऊपर आपकी एफडी की कैलकुलेशन होनी है, उस केस में आपने जो सेल टाइप है वो सिलेक्ट कर लेनी है गुड्स एफडी इन एस्टीमोड। टैक्स रेट एप्लीकेबल है इसके अंदर
0.5% से लेके 8% और 17%, ये सिलेक्ट कर लेने। ऐसा स्केड्यूल नंबर इसमें नहीं आता। इस केस में आपने असेस्ड वैल्यू पर यूनिट आपने डिफाइन करनी है, जिसके ऊपर आपका एफएडी टैक्स लगता है और जो आपको डिटरमिन करता है यूनिट प्राइस के लिए। तो इसलिए हमने पर यूनिट यहाँ पे एफडी प्राइस लिख दी। सेल प्राइस ये आप लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं है, क्योंकि जब आप सेल एनवाइस में जब ये लाइन एंटर करेंगे तो जो भी आपका एफडी रेट होगा वो कैलकुलेट होगा इसके ऊपर 1200 के ऊपर, और आपकी यूनिट प्राइस डिटरमिन हो जाएगी। क्योंकि ये रिटेल प्राइस वाला केस नहीं है, इसलिए हमने इसको 0 छोड़ दिया, इसको हमने कर दिया अपडेट। अगर ये आपका आइटम होता यहाँ पर थर्ड स्केड्यूल वाला, ये ऊपर आ गया, अगर थर्ड स्केड्यूल आता तो हमने सेल टाइप थर्ड स्केड्यूल एंटर करके, तो जो रेट आपके पास आ रहे हैं तीन, एक सेकेंड, थर्ड स्केड्यूल हमने सेलेक्ट कर लिया, रेट हमारे पास आ रहे हैं 5%, 18, 25, इसमें से हमने कोई रेट सेलेक्ट कर लेंगे जिस पर फॉल करते हैं, और यहाँ पर फिर हमने जिस तरह ये रिटेल प्राइस है, यहाँ पे हम रिटेल प्राइस डिटरमिन करेंगे इसकी, जो भी आपकी टीपी प्राइस है, और फिर टीपी के ऊपर आपकी सेल टैक्स की वैल्यू कैलकुलेट होगी, और जबकि आपकी जो टोटल प्राइस है लाइन की, उसके अंदर आपकी ये सेल टैक्स विद टीपी प्लस आपकी जो ओरिजिनल जो सेल प्राइस है 65,000 वो ऐड अप हो जाएगी। अब इसकी हम एक एंट्री करके देख लेते हैं, और आपको मैं लाइंस क्रिएट करके बता देता हूँ कि ये सिस्टम ऑटो डिटरमिन कर लेगा ईच एंड एवरीथिंग। 28 कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइंस। अच्छा, अब मैं अभी जा रहा हूँ थर्ड स्केड्यूल के लिए। थर्ड स्केड्यूल मुझे पता ही है आइटम मेरा थर्ड स्केड्यूल क्या है। अब सिस्टम ने ऑटो क्या किया, सिस्टम ने ऑटो यूनिट प्राइस 65,000 पिक कर ली, और रिटेल प्राइस है आपकी 70,000। अब इस 70,000 के ऊपर आपका ये 18% टैक्स कैलकुलेट हो गए, 25,200 आपका सेल टैक्स कैलकुलेट हो गया, और आपका ये जो टोटल इंक्लूडिंग फर्दर टैक्स के अंदर आपका 25,000 सेल टैक्स प्लस अमाउंट एक्सक्लूडिंग सेल टैक्स, ये ऐड अप हो गया। तो वंस ये हम सेव करते हैं इसको अपडेट करके इसके अंदर सिनेरियो नंबर ऐड करते हैं। आई थिंक ये SN, एक सेकेंड, सिनेरियो नंबर मैं इधर देख लूँ, एक्सेल से सिनेरियो नंबर है इसका SN8, इसका सिनेरियो नंबर SN008। अच्छा, अभी जो मैं ये सिनेरियो नंबर लिख रहा हूँ ना, ये मैंने आपको शुरू में बताया था, क्योंकि अभी हम सैंडबॉक्स वाले मोड में हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन में अब जब एक्चुअल जब ट्रांजैक्शंस एंटर करना शुरू करेंगे, उस वक्त आपको इस सिनेरियो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो फील्ड है ये आपको नजर नहीं आएगी प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन मोड ऑन होगा इसका, ठीक है। ये सिर्फ सैंडबॉक्स के लिए है। पोस्ट ओके, एक सेकंड, ये 88 हो गई, 008 सेव। तो भी आई थिंक एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेट्स सी अपडेट सक्सेसफुली। एक सेकंड, इसको बाद में आता हूँ, ट्रांजैक्शंस, सेल नॉइस। अच्छा, अभी जो है ना, इस तरीके से आपके पास जो सेल इनवॉइसेस है बाहर, अगर हम लिस्ट व्यू में आए और यहाँ वहां पर आपको स्टेटस भी नजर आ रहे हैं, ये सारे पोस्टेड है, ये आपका अनपोस्टेड है, ठीक है। मैं वंस अगेन दोबारा इसको ओपन करके पोस्ट करने की कोशिश करते हूँ, ठीक है। ये आपका इनवॉइस पोस्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। ये आपका रिटेल प्राइस वाला भी सिनेरियो हो जाता है। अभी मैं जस्ट एफडी के लिए आपके लिए एक लाइन बना देता हूँ कि एफडी की जो आपकी इनवॉइस है वो किस तरीके से बनेगी इसके अंदर। हमने जैसा डेट सेलेक्ट की, ये आ गया, कस्टमर सेलेक्ट किया। अब यहाँ से अब मैं एफडी, जिस तरह ये टोबैको कंपनी टोबैको है, ये कोई इसके ऊपर एफडी एप्लीकेबल है। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ 2। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, एसएल यूनिट वैल्यू मैंने पर यूनिट वहां पर डिटरमिन की थी 1200, ठीक है। इसके ऊपर एफडी है 16% मैंने दे दिया, उसने डिटरमिन कर ली, इसकी यूनिट प्राइस है 1392, 1392। अब ये यूनिट प्राइस ने खुद डिटरमिन कर ली है, ठीक है। तो अब बस आगे है, अगर आपने डिस्काउंट देना है, फर्दर टैक्स देना है, फॉर एग्जाम्पल फर्दर टैक्स में दे देता हूँ 4.5% अगर एप्लीकेबल है, अगर एडवांस टैक्स अगर कोई एप्लीकेबल है 4% वो दिया। तो इस तरीके से ये आप सेव करेंगे,
सिनेरियो नंबर देंगे और पोस्ट करेंगे तो ये आपकी पोस्ट हो जाएगी। सेम इसी तरीके से अगर आपने रिटर्न्स, अगर इस सिस्टम में अगर रिटर्न ये जो मैंने सेल किया इसकी रिटर्न आप सिस्टम में मैनेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, न्यू करेंगे। उसी तरीके से ये है, डेट्स देंगे, डॉक्यूमेंट डेट क्या है, रिटर्न डेट क्या है, पोस्टिंग डेट क्या है, और यहाँ पे आपके पास वो सारी सेल इनवॉइसेज आ रही है जो आपने अभी पोस्ट की हुई है। कोई सी भी आप इनवॉइस सेलेक्ट करें, जैसे इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे उसका डेटा सारा आपके पास सामने आ जाएगा। और क्वांटिटी, अगर आपने पूरी इनवॉइस रिटर्न की है तो क्वांटिटी इसी तरीके से जाने दें, अगर चेंज करनी है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं अभी फुल नाम चेंज कर देता हूँ, सेव एंड देन पोस्ट, तो ये आपकी पोस्ट हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से है आपका परचेज इनवॉइस है। मैं जस्ट एक पोस्टेड परचेज इनवॉइस ओपन कर देता हूँ, वो सेम चीजें हैं, सिर्फ आपका जो कस्टमर है वो रिप्लेस हो जाएगा वेंडर के साथ, जिस तरह यहाँ पर हुआ है। बाकी लाइंस के अंदर फंक्शनलिटी उसी तरीके से है जिस तरीके से अभी हमने सेल इनवॉइस में देखी है, वो इसी तरीके से परचेज रिटर्न, जिस तरीके से अभी हमने परचेज सेल रिटर्न की एंट्री की थी, इसी तरीके से परचेज रिटर्न की एंट्री है। यहाँ से आप वो सारी पोस्टेड परचेज इनवॉइसेज नजर आ रही होंगी जिसके अगेंस्ट आप रिटर्न डाल सकते हैं। क्योंकि अभी हमने कोई परचेज इनवॉइस पोस्ट नहीं की, इसलिए ये मुझे यहाँ पर ब्लैंक नजर आ रहा है। अच्छा, वंस ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं, अगर आपने इन्वेंट्री एडजस्टमेंट या इन्वेंट्री को भी ट्रैक करना है, उसके भी स्टॉक काउंट करना है, या उसकी भी ऑन हैंड क्वांटिटी को आपने मेंटेन करना है, तो यहाँ से आप इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज डाल सकते हैं जो आपको ऑन हैंड क्वांटिटी को मेंटेन करने में मदद देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कोई एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्वांटिटी है, पॉजिटिव करेंगे तो आपकी क्वांटिटी इन हो जाएगी, नेगेटिव करेंगे क्वांटिटी आपकी माइनस हो जाएगी, इन्वेंट्री एडजस्टमेंट नेगेटिव में चली जाएगी। तो यहाँ पे आप यूनिट कॉस्ट अपडेट करना है, यूनिट कॉस्ट अपडेट करके इन कर लें, कोई इशू नहीं। सेव, अच्छा डेट सेलेक्ट नहीं की हुई मैंने, ट्रांजेक्शन डेट टुडे एंड देन पोस्टिंग डेट टुडे, सेव एंड देन पोस्ट। ठीक है, ये पोस्ट हो गया, ये आपकी दूसरी एंट्री भी आ गई, और क्लिक करके आप ओपन करके देख भी सकते हैं। अच्छा, जितनी भी मैंने ये ट्रांजेक्शन की हैं इनका सारा इम्पैक्ट आपका चला जाता है लेजर्स में। आप कस्टमर लेजर्स में, ये जो कस्टमर लेजर्स हैं ये आपका समरी व्यू है, आपका इनवॉइस व्यू है। ठीक है, डिटेल व्यू नहीं है, जिसके अंदर आपके पास इनवॉइसेस आ रही हैं, ये पोस्टिंग डेट, डॉक्यूमेंट डेट, एफपीआर का इनवॉइस नंबर आपका आ रहा है, कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, और आगे जो भी आपकी इनवॉइस की टोटल डिटेल है वो सारी आ रही होती है। ठीक है, और ये जितनी भी आपकी डिटेल्स हैं ये आपकी एक्सपोर्ट भी हो जाती है एक्सेल के अंदर, ये आपका एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, एक्सेल के अंदर डाटा आपका एक्सपोर्ट हो जाता है। इसी तरीके से वेंडर लेजर्स है, और इसी तरीके से आइटम लेजर्स। आइटम लेजर्स में आपकी लाइन वाइज इंफॉर्मेशन फॉल कर रही होती है, इसके अंदर आपके सेल से भी इंफॉर्मेशन आ रही है, परचेज से भी आ रही है, और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से भी आ रही है। क्योंकि अभी मैंने लास्ट जो एंट्री की थी इन्वेंट्री एडजस्टमेंट से की थी, जो लेटेस्ट रैकेट है वो आपका ऑन द टॉप ऑफ द लाइन आ रहा होता है। ठीक है, ये आपका रिकॉर्ड आ रहा है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का, यहाँ से आपको पता चल रहा है इन्वेंट्री एडजस्टमेंट है, सेल रिटर्न। ठीक है, इस आइटम के अगेंस्ट आप इसके ऊपर फिल्टर भी लगा सकते हैं अगर आपने लगाना है। ये जितने भी कॉलम ऊपर नजर आ रहे हैं ये सारे फिल्टेबल है। ठीक है, आप लगा सकते हैं, यहाँ से आप जाएंगे और ये फिल्टर लगाएंगे, और आप यहाँ से फिल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ हाँ, भी ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अभी मैं इस फिल्टर को करता हूँ रिमूव। इसी तरीके से आप यहाँ पर आइटम किधर है, ये आइटम नंबर पे फिल्टर लगाएं, एचएस कोड पे लगाएं, आइटम 9 पे लगाएं, आपको दे देगा। और इसी तरीके से कस्टमर लेजर्स पे आप जो भी कॉलम है कस्टमर पर भी फिल्टर लगा के उस स्पेसिफिक कस्टमर की ट्रांजेक्शन देखना चाहे वो देख सकते हैं। अच्छा, वंस ये अगर हम लेजर से बाहर निकले तो ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह ये सेल्स समरी रिपोर्ट है। अच्छा, यहाँ पे आप पैरामीटर्स देंगे, जिस डेट की आपने रिपोर्ट्स देखनी है, डॉक्यूमेंट टाइप आपने सही सेल इनवॉइसेस देखनी है, सेल रिटर्न देखनी है, ऑल वो कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक कस्टमर की देखनी है तो वो भी देख सकते हैं, या ऑल करना है तो ऑल कर लें। वंस आपने पैरामीटर्स दे दिए, अप्लाई फिल्टर्स, तो आपका ये डाटा फैच होके सामने आ जाते हैं। इसको आप प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लें, एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास सेल्स डिटेल है, सेल डिटेल में आपके पास जो डेटा डिस्प्ले होता है वो लाइन वाइज होता है, आइटम वाइज होता है, और इसकी टोटलिंग भी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको डेट होती पीछे करके, ठीक है, अब ये इनवॉइस नंबर, ये हेडर आ रहा है आपका, और नीचे वाला उस ये
टोटल आ रहा है। अगर इस इनवॉइस के अंदर मल्टीपल आइटम्स होते हैं तो वो आपके उतनी मल्टीपल लाइंस आपको नजर आ रही होती, ठीक है। ये भी इसी तरीके से एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से परचेज डिटेल है, परचेज समरी है और इन्वेंट्री मूवमेंट। इन्वेंट्री मूवमेंट में आपके पास बिगनिंग बैलेंस प्लस क्लोजिंग बैलेंस, जो इन्वेंट्री का जो स्टॉक है उसके अगेंस्ट आपको ये रिपोर्ट दे रहा होता है। मिसाल के तौर पर ये ओपनिंग बैलेंस है इस आइटम का, ये जो आइटम है वो है अभी 0, ठीक है। अब जो डेट रेंज मैंने सेलेक्ट की है, डेट फ्रॉम डेट टू, इसके दरमियान इन बिटवीन जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसका उसने रिकॉर्ड दे दिया आपका, ठीक है। बता दिया कि ये -2 है। क्यों है 2? क्योंकि ये सेल इनवॉइस डली हुई है, ये परचेज इनवॉइस डली हुई है, ये परचेज रिटर्न डला हुआ है, सेल रिटर्न, इन्वेंटरी एडजस्टमेंट, ठीक है। और एंड में उसकी क्लोजिंग बैलेंस, ये सारी मूवमेंट बता रहा है उस आइटम की, ठीक है। ये जो मैंने अभी हाईलाइट की है रोज। इसी तरीके से नीचे सेकेंड आइटम जो भी है सेलेक्ट किया हुआ, ठीक है। फिल्टर भी लगा सकते हैं, आइटम का ऑल देखना ऑल भी देख सकते हैं। ये है आपकी इन्वेंट्री मूवमेंट रिपोर्ट। अच्छा, इसके अलावा ऑन द टॉप ऑफ ये जो मैंने आपको शुरू में बात की थी सेल इनवॉइस की, कि बल्क में आप किस तरह डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दिया हुआ है आपको टेम्पलेट, एक्सपोर्ट टेम्पलेट। एक्सपोर्ट टेम्पलेट करेंगे तो ये आपको एक्सेल में टेम्पलेट दे देगा जिसमें प्री डिफाइन आपके कॉलम्स होंगे, उसके अंदर हमने डाटा फिल करके इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब मैं इसको एक करके बता देता हूँ आपको। ये आपको डाउनलोड में गया, ये इनवॉइस टेम्पलेट है। इस सर्वर में एक्सेल नहीं है, मैं अपने पास इधर लेके आता हूँ, पेस्ट किया, ओपन किया, ठीक है। ये आपके पास इनवॉइस टेम्पलेट है। अच्छा, इस इनवॉइस टेम्पलेट में आपने पोस्टिंग डेट बतानी है सिस्टम को, डॉक्यूमेंट डेट बतानी है, कस्टमर नंबर बताना है, एग्जैक्ट वो नंबर है जो आपने इस डिजिटल इनवॉइसिंग ऐप के अंदर क्रिएट किया हुआ है। इसी तरीके से आइटम नंबर, क्वांटिटी। अब आपके ऊपर डिटरमिन करता है कि आपका केस कौन सा। अगर आपका एफडी वाला है तो आप 60% दें, नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दें। इसी तरीके से यूनिट प्राइस मीन सेल प्राइस, अगर आपका ये थर्स के जो वाला आइटम है, रिटेल प्राइस दें नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दें, डिस्काउंट है तो दें, नहीं है तो उसको छोड़ दें। सेल टैक्स आपको देना पड़ेगा, सेल टैक्स %, फर्दर टैक्स है दें, नहीं है तो छोड़ दें, एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो वंस ये आपका ये क्रिएट हो जाती है टेम्पलेट, इसको सेव करें और इधर लेके इधर पेस्ट करें और मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ इनवॉइस को। इंपोर्ट इनवॉइस जहाँ पे मैंने इसको सेव किया है, इसको पार्ट दें, ओपन करें, ठीक है। वही जो 2 लाइन मैंने सेव की थी वही 2 लाइन अब आपके पास इंपोर्ट हो गई है, ठीक है। ये आपके पास इंपोर्ट हो। अब इसके बाद आप सेव इनवॉइस करें, ये आपकी अनपोस्टेड 2 सेव इनवॉइसेस आपकी क्रिएट हो गई हैं। इसको हम जाके देख लेते हैं, सेल्स, ठीक है। ये देखें 2 अनपोस्टेड सेल इनवॉइसेस आपकी क्रिएट हो गई जो अभी हमने इंपोर्ट की हैं थ्रू एक्सेल शीट्स, ठीक है। ये काम भी आपके पास, ये देखें मैंने ओपन करके आपको ये डिस्प्ले कर दिया। अच्छा, वंस ये हो जाता है तो इसके बाद हम ये डैशबोर्ड, जो मैं कह रहा था कि डैशबोर्ड में आपको बताता हूँ, ये अब इस वक्त ये हमें बता रहे हैं कि अनपोस्टेड सेल इनवॉइसेस आपके पास कितनी पड़ी हुई हैं, 3, पोस्टेड सेल इनवॉइसेस 6, अनपोस्टेड सेल रिटर्न 0, पोस्टेड सेल रिटर्न 2। यानी कि आपकी जो भी जो मेजर 2 टाइप्स हैं, सेल इनवॉइस, सेल रिटर्न, उनके 2 स्टेटस होते हैं, एक पोस्टेड होता है, दूसरा अनपोस्टेड होता है, ठीक है। इसीलिए ये आपको यहाँ पर 2 टैब्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब हम जब इसको क्लिक करेंगे, अब वो आपको ले गया है कि आपके पास ये 3 रिकॉर्ड है अनपोस्टेड, ठीक है। जो अभी 2 तो वो थी जो हमने लाइंस इंपोर्ट की थी, एक वैसे ही, ठीक है। ये हम कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से पोस्टेड सेल इनवॉइस 6, क्लिक किया, ये आपके 6। और फर्दर आपने इसको ओपन करना डॉक्यूमेंट का, वो आप कर सकते हैं, हाइपरलिंक है तो आप उसको ओपन करके आप व्यू कर सकते हैं, व्यू इनवॉइस करना, व्यू इनवॉइस कर लें, ठीक। और आपने एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है इसको, तो यहाँ से एक्सपोर्ट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट, ये सारा डेटा आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसी तरह परचेज वाली साइड है, आइटम एडजस्टमेंट, क्योंकि मैंने अभी 2 एडजस्टमेंट डालनी है तो ये 2 रोज आ गई। लुक एंड फील आपका वही है और नीचे आपके मास्टर रिकॉर्ड आ रहे हैं कि आपके इस बार 5 आइटम्स क्रिएट हुए हैं सिस्टम में, ये 5 हो गए, ठीक है। ये चीज़ है आपकी डिजिटल इनवॉइसिंग की। और यहाँ पे आपका कंपनी का लोगो आ जाएगा, यहाँ पर अभी जो TMRC आ रहा है, और यहाँ पर, और यहाँ TMRC, यहाँ पर आपका कंपनी का नेम आ जाएगा, और यहाँ पर आपका आ जाता है यूजर जो आपका लॉगिन हुआ हुआ है इस वक्त सिस्टम के अंदर। तो ये है आपका ऑल अबाउट डिजिटल इनवॉइसिंग। मैं आपको फिर ये वैसे ओपन कर देता हूँ और ये आपका प्रिंट आउट निकलता है सिस्टम के अंदर से, ठीक है। तो ये है इसका डेमो। तो कोई क्वेश्चन हो सर, कोई रेस करे कि
कोई इश्यू है, कोई समझ नहीं है, कोई टेक्निकल कोई चीज पूछनी है सर, एनीवन कैन आस्क एनी क्वेश्चन।